Welcome to my channel. In today's video, I am going to talk about one asana, that is Paschimottanasana, which is a seated forward bending asana in Hatha Yoga. It is a seated forward bend of spine. ये बैठ के किए जाने वाले आसनों में से एक है. चलिए सबसे पहले हम आसना के नाम के ऊपर बात करते हैं. पश्चिमोत्तानासना 3 शब्दों से मिलकर बना है. पश्चिम, उत्तान और आसन, जहाँ की पश्चिम का मतलब है वेस्ट और उत्तान का मतलब है इंटेंस स्ट्रेचिंग एंड आसन इज द पोज. On combining, it is an intense stretch of west pose. So this is the asana for the posterior stretch of our body. Also I will be sharing the benefits and किसको ये आसना परफॉर्म करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, and what are the limitations and contradictions of this asana. So we are going to talk about all this in this video. So do not skip here and watch the full video till the end. Before performing, let us talk about the limitations and contraindications, which means किसे ये आसना परफॉर्म नहीं करना चाहिए और किसके लिए अच्छा नहीं है ये. जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उन्हें ये आसना नहीं करना चाहिए. हाइपरटेंशन और हाई बीपी है उन्हें भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए. This asana puts lot of pressure on the lower back when the body is bent forward, so the patient of slip disc should avoid doing this anyone who asana. is pregnant also, she should also not perform this asana. As there would be pressure on pelvic area and the uterus may not be able to withstand the pressure. If someone has a hernia problem or peptic ulcer or any abdominal surgery, so also he or she should not perform this asana. Internal organs are pressed as the body moves forward, thus putting pressure and may cause further injury to the abdominal wall or intestine. Also, if someone has a sciatica problem और उनके पेन रहता है लेग में बहुत ज़्यादा, तो उन्हें भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट, एनी कोई प्रॉब्लम है अगर आपकी स्पाइन में, स्पाइनल डिसऑर्डर है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट डिसऑर्डर है, दिल की कोई भी बीमारी है, तो उन्हें भी ये आसना परफॉर्म नहीं करना चाहिए. People suffering from back injuries should also avoid this asana. Asthmatic patients should practice this asana under supervision. नाउ लेट्स प्रैक्टिस एंड देखते हैं कि आसना कैसे परफॉर्म करते हैं. चल, फर्स्ट दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर ले. हाथों को साइड्स में लेफ्ट एंड राइट विद हिप्स एंड दंडासन की स्थिति में आ जाएं और द स्टिक पोज. दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन. हियर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, एक ही लाइन में होनी चाहिए. आप ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी कर्व नहीं होना चाहिए स्पाइन में. it will be straight like this. Okay, Hands beside the body, palms facing down. इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, इंटेंस स्ट्रेचिंग देंगे. दोनों हाथ कान के साथ लगे हुए रहेंगे. Draw your spine up long towards the ceiling. नाउ व्हाइल एक्सहेलिंग, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, कमर से आगे की तरफ जाएंगे, जितना जा सकते हैं कंफर्टेबली. अगर आप यहीं तक जा सकते हैं तो आप यहीं रुक जाइए. On each exhale, deepen into your forward bend, abdomen drawn in. Stretch the hands to hold the big toe. While moving the trunk forward, use the muscles of the pelvic region of the back, not the spine muscles. While reaching for the big toes, expand the arms from the shoulder but don't use the force to reach the big toes. Gently pull the elbows down to touch the ground and bend the head to bring the forehead to the knees. Rest the forehead in the space between knees and maintain this pose, breathing normally. This is the final position. Now returning to the starting position, raise the head and letting off the toes. Gently straighten the back. धीरे धीरे वापस आएंगे, कमर सीधी रखते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे. रिलैक्स. आप पोज को 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं. अगर आप कर चाहें स्टार्टिंग में इन बिगिनर लेवल, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 सेकेंड्स. एंड यस, यू कैन परफॉर्म दिस आसना 3 to 4 times if you are doing dynamically और आप होल्ड नहीं कर रहे. अगर आप
तो 3 से 4 बार आप कर सकते हैं. और इफ़ यू आर होल्डिंग, लंबे समय तक आप होल्ड कर रहे हैं, तो फिर आप उसे 2 बार ही करें तो सफिशिएंट रहेगा. नाउ ये तो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हम सब जानते हैं और परफॉर्म भी करते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आसना को परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सम स्पाइनल इंजरी, और वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सम इंजरी इन द हैमस्ट्रिंग्स. उन्हें बहुत स्ट्रेच होता है तो वो नीचे तक जा ही नहीं पाते, और वो सोचते हैं कि अगर वो आसना को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे तो उन्हें उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पश्चिमोत्तानासना जो सब परफॉर्म कर सकते हैं. वो बिगिनर हो अगर तो वो परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें. तो आइए देखते हैं कि सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होता है और वो कैसे परफॉर्म करते हैं. कम इन अ पोजीशन ऑफ दंडासना और द स्टिक पोज. कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, इन अ स्ट्रेट लाइन. पैर सामने की तरफ, दोनों हाथों को पैरेलल टू ग्राउंड लाएंगे, चेस्ट के बिल्कुल साथ, लाइक दिस. एल्बोज पीछे की तरफ. Arms folded at the elbows, parallel to the ground, palms facing down. नाउ हल्का सा बेंड होंगे पीछे की तरफ, एंड देन इनहेल करते हुए पीछे की तरफ एंड एक्सहेल करते हुए सामने. वापस आएंगे, इनहेल, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे सामने की तरफ. आपको होल्ड नहीं करना यहां पर. इनहेल, एक्सहेल. Exhaling, bend forward and stretch the hands to cross the Last, toes. come in center, the starting position, and hands down on the ground and relax. I hope आपको समझ आया होगा. एंड यस, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी कमर बिल्कुल भी कर्व में नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी लाइक दिस ओनली, नॉट दिस. Repeat this 3 to 4 times without pause. Got it? अब हमने बात कर ली कि व्हाट इज पश्चिमोत्तानासना, वो नाम कहाँ से आया, नाम का मतलब क्या है, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, एंड परफॉर्म भी करके देखा, प्रैक्टिस किया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स. ये करके हमें क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे. दिस आसना हैज द न्यूमरस बेनिफिट्स, starting with it gives a good stretch to the hamstrings, to the back muscles of the thighs, and also helps to reduce the extra fat near our hip area or a pelvis region. Strengthens the abdominal muscles, knee joints, calf muscles. पेट की बहुत अच्छी तरह से मसाज मिलती है. ये आसन जब हम करते हैं तो हमें एब्डोमिनल मसाज मिलती है बहुत अच्छी. शोल्डर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है. फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज, लचीलापन जो है वो बढ़ जाता है ये परफॉर्म करने से. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर वीक डाइजेशन है तो उसे ये आसना जरूर परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है उस केस में. अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल रिड्यूस और लेसर द चांसेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन और वीक डाइजेशन. Also helps to correct the faulty postures of the curvature of spine and increases the blood circulation of the spinal area, जिसकी वजह से आप जब आगे की तरफ झुकते हैं तो आपके स्पाइनल मसल्स को एक अच्छी मसाज मिलती है जिससे कि वहां के खून का दौरा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. Yes, one thing also in this asana, it is a forward bending of spine and it is a cultural asana which increases the sense of commitment, surrender, and increases the vairagya bhav in the human being. Hence, it strengthens the power of dedication in oneself. So, this asana has the numerous benefits, and हर एक को इसको परफॉर्म करना ही चाहिए. So, what are you waiting for? अपने मैट लीजिए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए. And yes, I hope you all get all these details about the asana. So thanks for watching the video, and also if you have not subscribed my channel, so please subscribe it and also like the video and share it to your dear ones. Bye. Thank you Namaste. for watching.